करिन्थुस की कलीसिया के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का पहला खत 5वां बाब 6ठी आयत से, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप सिर्फ कलाम सुनने वाले नहीं, कलाम खाने वाले बन जाएं। बाइबल में 2 दफा जिक्र है, 2 लोगों को किताब दी गई और उनको कहा गया कि इसको खा जाए। आप इस लेवल पर आ जाएं कि कलाम आपकी खुराक बन जाए, आपकी ताकत बन जाए, जिंदगी बन जाए। मैं फिर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, कितना? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज सुबह जो हमारा टॉपिक है वो है जीसस क्राइस्ट आवर पैसोवर लैम्ब। यीशु मसीह हमारा फसा का बरा। कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में जिसकी तलावत आपने समाप्त फरमाई है, खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल कलीसिया में बद इखलाकी के गुनाह की तादीब करने की बाबत तालीम दे रहा है। अगर आप 5वें बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ें तो हमें मिलता है कि इस कलीसिया में, करिन्थुस की कलीसिया में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो अपने बाप की बीवी रखता था, जो उसकी रियल मदर, हकीकी मां तो नहीं थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली मां थी। कलीसिया इस हवाले से बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह, कोई एक्शन नहीं, कोई रद्दे अमल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। पौलुस रसूल कहता है कि तुम अफसोस तो नहीं करते कि गुनाह कलीसिया में मौजूद है, बल्कि शेखी मारते हो। तालीम यहां पर यह है कि कलीसिया को गुनाह के साथ समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि सख्ती से इसके साथ निमटना है, ना कि इस पर शेखी मारनी है। साडे कोल भी है जी एक डींगा बंदा। नो नो नो। पौलुस रसूल करिन्थुस की कलीसिया को आगाह करता है, अलर्ट करता है, वार्निंग देता है, खबरदार करता है। असरे हाजरा की तमाम कलीसियाओं के लिए ये आगाही, वार्निंग, अलर्ट
اور خاص طور پر میرے لیے، آپ کے لیے آج صبح یہ بڑی آگاہی، بڑی خبرداری ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ گناہ کی بابت خدا پیمانوں کا استعمال نہیں کرتا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ خدا گناہ کو گناہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ گناہ سے کراہیت کرتا ہے۔ اس لیے وہ جماعت، وہ رفاقت، وہ گھرانے، وہ سوسائٹیز، وہ کلیسیائیں جو دعوے دار ہیں کہ خدا ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کی حضوری ہمارے درمیان ہے، ان کو بھی خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا گناہ ساری رفاقت کو، ساری جماعت کو، سارے خاندان کو، ساری کلیسیا کو گناہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی بابت وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو خدا کا رویہ ہے۔ اگر کلیسیاؤں میں یہ رواج عام ہو جائے جو رائج الوقت ہے کہ تھوڑے گناہ کو برداشت کر لیا جائے، تو یاد رکھیے گناہ ایک ناسور ہے، یہ خمیر ہے جو تیزی سے بڑھتا ہے، اس کی اثر پذیری بہت جلد ہے۔ اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، مقدسوں کے لیے، راست بازوں کے لیے، خدا کی جماعتوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے خدا کی طرف سے کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو، یہ نہیں لکھا کہ پرانے خمیر کو ناپ کر، دب کر، برداشت کر کے، not at all، پرانے خمیر کو نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ رسول تشبیہ استعمال کرتا ہے، تازہ گندا ہوا آٹا جو ہر طرح کی آلائش سے، ہر طرح کے خمیر سے، ہر طرح کے باسی پن سے، گناہ سے پاک زندگی کے لیے، راست زندگی کے لیے جو خدا کو پسند ہے، تشبیہ یہ ہے کہ وہ تازہ گندا ہوا آٹا۔ پنجابی میں اے لوس لوس کردہ، اس میں سے خوبصورت سمیل آ رہی ہے، اس کی شکل سے، حیثیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تازہ گندا ہوا آٹا ہے۔ اور رسول کہتا ہے تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ یہ بنا بنایا نہیں کہیں سے ملے گا، یہ ہمیں خود بننا ہے، اور اس کے لیے پرانے خمیر کو اندر سے نکالنا، پرانی انسانیت کی جڑوں کو صلیب کی قدرت سے کٹوا لینا، ختم کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہم پرانے خمیر کے ساتھ، پرانے انسان کے ساتھ، پرانی خواہشات کے ساتھ کبھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے رسول کہتا ہے تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ یہ بننا ہے، اور وہ بننا ہے جو ہم نہیں ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو کیوں کہا جاتا؟ رسول کہتا ہے تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ یہ ضروری ہے، انسپیریشن ہے، یہ بننا ہے۔ یہ بننے کے لیے ایک تحریک ہے، بلاوا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح کے دیکھنا چاہتا ہے۔ خمیر کے بغیر خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لفظ خمیر یہ بائبل مقدس میں پہلی دفعہ خروج کی کتاب کے 12ویں باب کی 15ویں آیت میں استعمال ہوا ہے،
और उस वक्त रिवाज ये था बनी इसराइल के जमाने में, ये खास किस्म की फफूंदी कोई बैक्टीरिया था, आटे को गूंथ कर उसमें ये लगा दिया जाता था। और फिर मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ गर्म जगह पर रखकर या किसी तुर्श खट्टी चीज से खमीर इसको लगाया जाता था और इससे ये फूल जाता था। फुला लेना किसी तुर्श चीज के साथ। हम तो बड़े बाज़ौक लोग हैं, बासी आटे की रोटी नहीं खाते, खमीर हो जाए हम फेंक देते हैं। लेकिन आज भी होटल्स में लोग खमीरी रोटी मांग कर खाते हैं कि जी खमीरी ले आओ जी, 2-4 खमीरियां ले आओ। उसके अंदर खमीर लगा होता है। ये हम जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो बेकरी स्टफ है, इसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। फिर इससे मुराद जो दूसरे सानवी मानी है, सरिश्त, नेचर, फितरत, मिजाज, तबीयत। रसूल कहता है कि पुराना खमीर अपने अंदर से निकाल दो। जब रसूल ये कहता है तो इससे क्या मुराद है, आइए हम देखते हैं। यीशु मसीह ने इसकी बाबत तालीम दी, इसकी तफसीर की। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान खोलिए मेरे साथ, उसका 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 12वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 16वां बाब 5वीं आयत। और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, सुनिए, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। खमीर इनके लिए बड़ा आम लफ्ज था, प्रैक्टिस थी घरों के अंदर। वो आपस में चर्चा करके कहने लगे, हम रोटी नहीं लाए। अगर आप अनाजील का तफसीली मुताला करें, इन्हों का मीटर वैसे भी रोटियां ते अड़िया से, और ये आज का इंसान भी इन्हीं बातों में फंसा हुआ है। वो आपस में चर्चा करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने ये मालूम करके कहा, ऐ कम इत्कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5,000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और उन 4,000 आदमियों की 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? कोई बात तुम्हें याद नहीं। क्या वजह है तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। ये खमीर जो सदूकी, फरीसी, झूठे उस्ताद, रियाकार, बिदती तालीमात के मालिक लोग ये लगाते हैं ना, ये आटे को लगने वाले खमीर से कहीं ज्यादा खतरनाक सदूकियों का और फरीसियों का। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। मसीह ने एक और खमीर की बाबत तालीम दी जो दी मोस्ट डेंजरस, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जानलेवा, ज्यादा नुकसानदेह, और वो है गलत तालीम, झूठी तालीम। और किसी शख्स ने कहा है, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बी केयरफुल, मोहतात, खबरदार, मैं कहां से तालीम पाता हूं, मैं कहां से सुनता हूं।
गुज़श्ता दिनों मुझे एक इबादत अटेंड करने का मौका मिला अपने गांव में। एक खतीब इस्लामाबाद से तशरीफ फरमा थे। उन्होंने मुकाशफा की किताब की आखिरी मुबारकबादी पढ़ी। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, और कहते हैं अगर मॉडर्न तौर पर इसका तर्जुमा किया जाता तो ये होना था अपने शलवार कमीज दो। हैरान कुन तफसीर। इसलिए खुदा अपने बंदा के वसीले, अपने बेटे के वसीले तंबीह देता है कि झूठी तालीमात, गलत तालीमात, झूठे उस्तादों, रियाकार लोगों की तालीमात के खमीर से खबरदार। इस पैसेज में दो लफ्ज खबरदार और होशियार। जिस तरह खमीर आटे की सूरत भी बदल देता है और टेस्ट भी। अच्छा बोला पड़ा होता है खमीर लगाने की दो फुल के जाता है बुलबुलियां जी मारन डा पैंदा, टेस्ट खटा हो जाता है। इसी तरह गलत तालीम हमारी रूहानी सूरत, हमारी रूहानी शक्ल, हमारी स्पिरिचुअल शेप और टेस्ट को बदल देती है, खराब कर देती है। इसलिए कलाम कहता है होशियार और खबरदार है। और मसीह ने इसकी असर पजीरी की बात भी की कि खमीर इंतहाई जल्दी से फैल जाता है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 13वां बाब 33वीं आयत से ऑनवर्ड मसीह की एक तमसील का जिक्र है। मसीह ने कहा आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जो किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे, यह कोई 12 सेर का तखमीनन पैमाना है, 3 पैमाने आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये इतनी जल्दी से फैलता है। गुनाह की बाबत सुस्ती ना करें, लापरवाही ना करें। मैं अगले साल छोड़ दूंगा, अगले इतवार छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, शायद उससे पहले तेरी जिंदगी खमीर हो जाए, गुनाह बन जाए। इसलिए आज ही खुदा के बंदा पौलुस रसूल की जो पाक रूह की तहरीक से कहता है कि पुराना खमीर, ये हम सबको पता है कि किथों किथों लगता है। 99% लोगों को तो मोबाइल से लग जाता है। जब ये नहीं था इब्लीस के पास और बड़े हथियार थे, लेकिन आज जो उसका मोस्ट कॉमन हथियार है वो ये है, लगा देता है, हम सिलाई करते रह जाते हैं। कल परसों अगली कन्वेंशन थे, अगले साल, और तब तक देर हो चुकी होती है। पुराना खमीर निकाल कर, ये खुदा को पसंद नहीं। बहुत जरूरी पैगाम मेरे लिए, आपके लिए, और आगे चलकर इसकी अहमियत पर मैं बात करूंगा। जब रसूल खमीर की बात करता है तो उसका ध्यान अपनी नेशन, अपनी कौम बनी इस्राइल की तारीख के एक बड़े खास, इंपॉर्टेंट, स्पेशल और हिस्टोरिकल इवेंट की तरफ चला जाता है, जब खुदा ने अपनी चुनिंदा कौम, अपनी चोजन रेस, नेशन को बचाने के लिए फिरौन, उसकी रैयत, उसकी सल्तनत पर 10 आफात नाज़िल किए। यह बाइबल मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत बयान है। जब भी फानी इंसान तकब्बुर के खमीर के साथ, फख्र, गुरूर, बड़ेपन के खमीर के साथ यहोवा के सामने खड़ा होता है, फिर यहोवा उन फल्क बोस अमारात को, शख्सियात को जमीन बोस कर देता है। सख्ती फिरौन की थी, गुनाह किसका था? बोले किसका? फिरौन का। सजा कौन पा रहे थे? आज हमारे खानदानों में घरानों के सरबराह
गुनाह करते, नाफरमानी करते यूना की तरह, लेकिन सजा सारी फैमिली घराना उठाते और वो मुश्किल के अंदर पड़े रहते हैं। फिरौन सख्त हो गया, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं फिरौन हूं, मैं हूं। खुदा ने 10 आफतें नाज़िल की, और ये 10 की 10 किसी वक्त हम इस पर बात करेंगे। ये उन देवताओं के खिलाफ थी जिनकी वो प्रस्तिश करते थे। मैं जब पढ़ रहा था मैं हैरान हो गया। मेंढक आ गए, ये ना मारन जोगे ना बाहर सुटन जोगे, इन्हां दा एक देवता मेंढक दी शक्ल दा है। क्या अजीब मुश्किल, वो पटोसी मारदा उथे, पटोसी मारदा उथे। अजीब मुश्किल के अंदर पड़े हुए यहोवा से लड़ने वाले जिंदगी में इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते जब तक वो सरेंडर नहीं कर देते, मान नहीं लेते। 9 आफतें आई, ये प्ले करता रहा। जब आफत आती मूसा को बुलाता, कहता खुदा के बंदे जल्दी से ना हमें, तो आप चले जाओ, निकल जाओ, लेकिन शर्त ये है, शर्त ये है, शर्त ये है। खुदा ने उस वक्त तक मारा ਜਦੋਂ तक ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ शर्तां ਦਾ बुकरम सीधा नहीं ना होया। फिर 10वीं आफत जो खुदा ने नाजिल की, मेरी पैगाम, मेरी टेक्स्ट का ताल्लुक उसके साथ, खुदा ने कहा बस हो गई है, अब मैं मुल्क मिस्र की गलियों में से होकर गुजरूंगा। कलाम निकालिए मेरे साथ, खुरूज की किताब। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, लिखा करें, ये आपके काम आएगा। खुरूज की किताब, उसका 11वां बाब, यहां से हम शुरू करेंगे और मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा। गौर करें, आदमी भेजे, शैतान भेजे, कुदरती आ जाए वबा, ते यहोवा डक देंदा। ते जे यहोवा भेजे, नादान खादम उसके आगे भी डके लगाने की कोशिश करते हैं बगैर सोचे कि आई किथों। उसके बाद वो तुमको यहां से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहां से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। ये उधार नहीं लिए थे उन्होंने, ये ना कोई धोखा था। उन्होंने कहा था हमें दो, उन्होंने दे दिए। इतनी देर की उनकी मजदूरियां रुकी हुई थी, वो नहीं सन निकलनी। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया, और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फिरौन के खादमों के नजदीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। गौर से सुनिए। और मूसा ने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा। गौर करो, कितनी कीमती कौम जिनके लिए यहोवा लड़ने आ गया। मैं आज आपको और सारी दुनिया की आलमगीर कलीसिया को, खून खरीदों को, जिनका फसा कुर्बान हुआ, यह कहना चाहता हूं, तुम कीमती हो, तुम मुबारक हो, जिनके लिए खुदा का बेटा आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया, वो आपकी जंगें लड़ता है। मैं मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब पलौठे, फिरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पलौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक, और चौपायों के पलौठे मर जाएंगे। मिस्र में इंसानों के पलौठे भी और जानवरों के, ये फिरौन के होते थे। अब फिरौन की गर्दन को हाथ पड़ा है, उसके इख्तियार को यहोवा ने जरा कुचला है।
कलाम कहता है सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इस्राएलियों में से हालेलुया किसी पर खा इंसान हो खा हैवान, एक कुत्ता तक भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो खुदावंद मिस्रियों और इस्राएलियों में कैसा फर्क करता है। कुत्ता नहीं भौंकेगा, मुकम्मल अमन, मुकम्मल इत्मीनान। ये आवाज बेचैनी पैदा करती है, खौफ पैदा करती है। रात की तारीकियों में यहोवा ने कहा उधर मातम होगा, रोना होगा। और पाकिस्तानी कलीसिया गौर से सुन लो, हम डर रहे हैं, बुरे हालात आ रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम नहीं रहा। जो कुछ मर्जी हो जाए, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए जमीन के पत्थरों को रोटियों में बदलने की कुव्वत रखता है। उसका आसमान आज भी मन बरसाने के लिए तैयार, उसके फरिश्ते आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। वो अपने लोगों में और गैरों में फर्क करना जानता है। खुदा ने उनको कह दिया। 12वां बाब, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। पर पास इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो, इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार, जियादा साहब नफरी के मुताबिक एक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। ये 14वीं वो दिन था जब यहोवा ने मिस्र की गलियों में से गुजरना था। कलाम कहता है, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे। शाम और दोपहर का धंधल का, उसमें इसको ज़बह करने का हुक्म, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, डिवाइन ऑर्डिनेंस उसके लिए। उसको सार और पाए अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना। और ये तमसील थी, अलामत थी, यीशु मसीह पूरी कुर्बानी के लिए सलीब पर चढ़ेगा, कुर्बान होगा। और जिस तरह बर्रा आग पर भूना गया, आग हजूरी की अलामत भी है, गजब की है, इसी तरह खुदा का बर्रा, फसा का बर्रा, मेरा और आपका बर्रा बनने के लिए खुदा की अदालत और गजब को बर्दाश्त करेगा। सुबह तक कुछ रहने नहीं देना। 11वीं आयत, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये खुदावंद की। 12वीं आयत, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। वेरी स्पेशल डिवाइन इंटरवेंशन, इलाही मुदाखलत, और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी, सिर्फ बंदियां नहीं, उन्होंने सियाणियां को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं।
और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। कोई जरूरत नहीं बाहर नेम प्लेट लगाने की कि ये पादरी हिस्कियल का घर है, ये फलां का घर है। हरगिज नहीं। खुदा जिस निशान को देखता और छोड़ देता है वो उसके बेटे यीशु का लहू है। वो निशान है मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं। जब मैं छोटा था ज़बूर 91 हम यूं गाते थे, तपाली तेरे वेड़े दे विच झाती भी ना पाएगी। फिर हम मॉडर्न हो गए और फिर अब हम क्या गाते हैं, कदी ना जावेगी। सोना लगता ना, झाती ना पावेगी। वादा, उधर अदालत, सजा, कहर, मौत। तुम्हारे खैमों में वबा झाती भी ना पाएगी, फटकने की भी नहीं, पर नहीं मारेगी। क्यों? तो ही डाटे पड़े हो, तगड़े पड़े हो, आपके पास असला बड़ा है, तुम्हारे डरों में बड़ी ताकत है। नॉट एट ऑल। इसलिए कि यीशु का लहू उस पर लग गया। बाप के गजब को सिर्फ एक ही चीज ठंडा कर दिया और वो यीशु का लहू। मैंने ये सुना अपने बाप से कि जब हम जमीन पर गुनाह करते हैं खुदा गज़बनाक होता है। यीशु तख्त पर बैठा कोड़ी, वो अपने लहू का प्याला लेकर बाप के पास चला जाता है कि मैंने इसके लिए। बाप को वो सारा मंजर याद आता है जब उसके बेटे से थूक बह रही थी, सर पे कांटों का ताज, पुष्ट पर कोड़ों की महार से, जैसे जमीन पर हल चलाने से निशानात से आड़ पड़ जाते हैं, इस तरह बरहना मट्टी के अंदर लिपटा हुआ, खून के अंदर लिपटा हुआ, जब वो अपने बर्रे की तस्वीर देखता है उसका कहर टल जाता है। एक हम है सलीबे में गले में डालकर भी बाज नहीं आते। कलाम कहता है वबा तुम्हारे पास फटकने की भी कि तुमको हलाक करे। ये फसा की तस्वीर और उसके लिए हुक्म। अब गौर से सुनिए, बर्रा भी लवो, जबा भी करो, लौ भी लाओ, बच भी जाओगे, लेकिन उसके लिए ऑर्डिनेंस 7 दिन तक। पुराने अहदनामे में 7 का लफ्ज ये अदद कंप्लीशन का अदद है, मुकम्मल जिंदगी के लिए। बेखमीरी रोटी खाना, गौर से, और पहले ही दिन से खमीर अपने घर से बाहर कर देना। इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इस्राएल में से काट डाला जाए। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए। फक्त यही किया जाए, तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा। इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल पहले महीने की 14वीं की तारीख से शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो। क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इस्राइल की जमात से काट डाला जाए। तुम कोई खमीरी चीज ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी। फसा जिनका है, जो फसा में शरीक हो,
फसा का लहू लगा ले, लेकिन हुक्म यह है कि जिंदगी खमीर से पाक। उल्टी सीधी बातें लोग करते हैं, पूछा जाओ कहां से सुना? टेलीविजन से सुना। ये खमीर बो रहे हैं, मोबाइल, भागते हुए खादिम, ये भी खमीर बाजुकात बो देते हैं, कड़वे दाने बो देते हैं। कलाम कहता है बेखमीरी ये जरूरी है। और अगर कोई बेखमीरी रोटी ना खाए तो वो कौम में से, जमात में से, खुदा को इस बात की फिक्र नहीं कि 2 रह जाएंगे या 4 रह जाएंगे, भावे अद्धा भी रह जाए, उसके कलाम की ताबेदारी ये जरूरी बात है। और मैं इसकी बाबत देख रहा था कि बनी इसराइल इस पर अमल करते हुए उस दिन भी और उसके बाद हर साल अपने घरों में सर्च ऑपरेशन करते थे। वो लाइट लेते थे, सबीना कलाम सुनो, वो लाइट लेते थे और सारे घर में, ये घर का फर्द करता था, सरबराह करता था। असी बच्चियां तो पाछड़ने, खुदा तुहाडे वाले बाकी मेरे वाले। वो लेता और सर्च करता, तलाश करता कि कहीं मेरे घर में कोई खमीर तो नहीं पड़ा हुआ। और मैं पढ़ रहा था कि वो बर्तन जिसमें वो आटा गूंद कर खमीर लगाते थे, उसको लेकर खुरच खुरच कर साफ कर देते। जिस जगह खमीर रखा जाता उसे रगड़ रगड़ कर ऐसा साफ कर देते थे कि खमीर का निशान बाकी। घर के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन करने के बाद वो हाथ उठाकर दुआ करता था, सरबराह ऐ खुदा, मैंने अपने घर को हर तरह के खमीर से पाक कर दिया है, दूर कर दिया है। अगर कहीं कोई खमीर है जिसका मुझे इल्म नहीं, मैं अपने पूरे दिल से उसे भी निकालता हूं। जरा गौर करो, कभी हमने यह तलाश करने की कोशिश की हो कहीं मेरे घर में गुनाह तो नहीं पल रहा और ये गुनाह पर गुनाह तो नहीं जन्म पा रहा? ना मैंने कभी इसके लिए तौबा की। अयूब इस हवाले से मिसाल था, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां गुजरानता, इनसे कहीं कोई खता ना हुई हो। ये ईमानदारी की जिंदगी की बात है, मॉडर्न जिंदगी की बात नहीं कि बच्चे जो मर्जी करते फिरे, वालिदैन जो मर्जी करते फिरे। हरगिज नहीं, हमें एक पेज पर आना होगा और कलाम की ताबेदारी करनी होगी। अगर खमीर घरों के अंदर है, 7 बर्रे कर लो, 7 दफा लहू लगा लो, वो रायगा है, किसी काम का नहीं अगर अंदर खमीर छुपा के रखा हुआ है। अगर हम दयानतदारी से यही देख लें, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में कितनी चीजें वो हैं जो मेरी नहीं, तो हमें खुद पता चल जाएगा। लेकिन कभी तौफीक नहीं है। फसा मना लेते हैं, फसा के बर्रे के गीत भी गा लेते हैं, खून अन्य वाई जिथे मर्जी लाई उन्हें, इसकी कोई इखलाकियात का ही हमें नहीं पता। खमीर को जफे मार मार कर अंदर छुपा लेते हो, इसको रिश्तों के नाम दे लेते हैं और कहते हैं बर्रे का खून लगा दिया है। जो खून देखता है वो अंदर भी देखता है। हुक्म यह है कि बेखमीरी रोटी, खमीर और खमीर गुनाह की अलामत। जिस तरह खमीर तेजी से फैलता है ना, इसी तरह गुनाह तेजी के साथ फैल जाता है, बर्बाद कर देता है, मौत ले आता है। पुराना खमीर निकालता है। मैं देख रहा था, इसके लिए निकाल दो के लिए जो ग्रीक जुबान का लफ्ज एक्काथीरो, एक का मतलब है बाहर और एन का मतलब है अंदर।
एकाठी रहो इसका मतलब है स्वीप आउट कर देना, बाहर निकाल देना, जिवें घरों नहीं कढ़ देईदा किसे, इस तरह निकाल देना ताकि हम बच जाए। और रूहानी मानों में खमीर से मुराद झूठी तालीमात, झूठे नजरियात, गुनाह आलूद सरिश्त, नेचर, फितरत, मिजाज, तबीयत, कलाम कहता है इसको निकाल दो। इसके बगैर बात। आओ जरा फसा का मंजर एक दफा मेरे साथ दोहराएं। बर्रा लिया जाता और उसको ज़बह किया जाता, उसका खून जमीन पर नहीं एक बासन में, एक बॉल में इकट्ठा किया गया। और अगर आप मेरे साथ देखें 12वां बाब 22 आयत, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा, यह जूफा एक पौधा जिसके ऊपर ब्रश की तरह के फूल होते थे, यह ईमान को जाहिर करता है। यीशु का लहू ये को टबों बाल्टियों में लगाकर नहीं लगाया जाता लेकर, यह ईमान की बात है। जूफे का गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर न जाए। मैं अपने तस्वुर में देखता हूं शाम का धुंधलका है, हर घर के अंदर बर्रा ज़बह किया जा रहा है। खून बर्रा ज़बह कर लिया जाए, लेकिन अगर खून ना हो, इकट्ठा ना किया जाए, तो वो किस काम है? खून ले लेना और उसको बॉल में, बासन में लेकर जूफे के साथ अपने घर के दरवाजे के ऊपर और दोनों, मैं देखता हूं कि घर का सरबराह वो एक बॉल में लहू लेकर, बर्रे का, फसा के बर्रे का, और एक जूफा लेकर घर के बाहर निशान लगा रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं, पापा ये क्या है? ये फसा के बर्रे का लहू है, इन्हें ही बचाना जी, यही छुड़ाएगा। जब सारी दुनिया मातम करेगी, यही तुम्हें खुशी और इत्मीनान देगा। डॉक्टर बिली ग्राहम लिखते हैं, घर में एक बच्चा पैल उठा, बड़ी शिद्दत के साथ तड़प रहा था, करीबुल मर्ग था। पूछा गया, क्या घर के दरवाजे के बाहर लहू लगा है? नहीं था, जल्दी से लगाया गया, खून लेकर लगा दिया गया। और खून के लिए ऑर्डिनेंस ये है, गौर से, वो पांव जिधर रख के जाते हैं वहां पर नहीं लगाना। वो हमारे रौंदने के लिए नहीं, हमें जिंदगी देने के लिए। हर घर के ऊपर निशान लगा है। और बनी इस्राइल के लिए शरीयत यह है, कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से, मैनू कदी कदी लगता है ईमानदार खादी पीती च लहू लाउंदे रहंदे ने, अंदर खमीर भरे होते हैं, मैं तेरा लहू अपने ऊपर लेता हूं, इन्हें तो काट पहला, जो उसकी असर पजीरी को खराब करता है। घरों में गुनाह, गंदगी, बद किरदारियां, हर तरह की लाशें, हम लहू ला के सोते हैं, खमीर अंदर और लहू लगाते हो। और फिर खुदा ने कहा, जब लग जाए, जब तक कहर की आंधी चलती रहे, अदालत की आंधी चलती रहे। और से सुनना, ये मेरा पॉइंट, जब तक कहर चलता रहे, मौत की खबरें और रोना और मातम की आवाजें आती रहें, बाहर ना निकलना। खून लगाना जरूरी है, लेकिन खून की हिफाजत में रहना उससे भी जरूरी है। हम लहू लगाते हैं और निकल जाते हैं। खिचा बड़ियां पैंदियां ने ना, हाय उन्हां मिसरियां नाल ते मेरा नियंत्रा भाजी सी, उन्हां वालों ते अजे शहवां होणियां सन, उन्हां नाल ते साडा मुंह प्यार बड़ा सी,
भजो उन्होंने गल ला के रोई है, तो पुत्र फिर रोएगा ही सारी जिंदगी। अगर खून की हिफाजत से निकल गया तो कोई तुझे बचाने वाला नहीं रहेगा। लगा लो लहू और बैठ जाओ इस लहू के अंदर जब तक यहोवा ऑपरेशन कर रहा है, कहर नाज़िल हो रहा है, गज़ब नाज़िल हो रहा है। कलाम कहता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से अजी निकल भी आइए तो 1 लाख पिछा ही होंगी कि निकलिए। मार खाई जानी है, कुट खाई जानी है, अदालत सही जानी है, लत नहीं खिंचनी बाहर। इसलिए निकल आओ कि तुम उनके गुनाहों में शरीक। अगर खुदा हमें बारीक ऐनक दे देना रूहानी, हमें पता चल जाएगा साढ़े 50% स्यापे उन्हें जेड़ा सा आप सेड़े ने उन्हां दी मदद कर करके जिन पर खुदा का कहर और गज़ब नाज़िल हो रहा है। हुक्म यह है कि अंदर बैठ जाओ, हम बैठते ही नहीं। खून ला लिया, लहू ला लिया, लहू लहू कर दे। क्या कर रहे हो? लहू की कोई इखलाकियात है, कोई ऑर्डिनेंस है? ये तो फसा के बर्रे की बात है जो मसीह का मसील था। और अगर मसीह के लहू की बात कर ली जाए, ये गुनाहगार को धोता है, पाक करता है, लेकिन गुनाहगार को तरा नहीं देता। ये बात याद रखिए। अंदर रहना है जब तक कहर नाज़िल होता रहे। और फिर 29वीं आयत, और आधी रात को खुदावन ने जो कह दिया वो होगा। वो अहद का खुदा है ना, वो अहद का सच्चा पक्का सादिकुल कौल, जो कह देता वो करना है। आधी रात को खुदावंद ने मुल्क मिस्र के सब पैलौठों को, फिरौन जो तख्त पर बैठा था उसके पैलौठे से लेकर वो कैदी जो कैद खाने में था उसके पैलौठे तक, और बल्कि चुपायों के पैलौठों को भी हलाक कर दिया। ऐसा बड़ा मातम वहां होता है जहां लहू का निशान नहीं होता। जिनका फसा ही कुर्बान नहीं हुआ, जिनके लिए कोई मर ही नहीं गया, जिनकी मौत किसी ने अपने ऊपर नहीं ले ली, वो मरते रहते हैं, हलाक होते रहते हैं। मुबारक है वो जिनका फसा कुर्बान हुआ है। वबा, अदालत, सजा उनके खैमे के पास फटकने की भी नहीं। खुदा की जुबान समझा करो। खुदा बोलता है समझा करो। जब छोटी छोटी बातें खराब होना शुरू हो जाए तो समझो वो कुछ कह रहा है, वो कुछ समझा रहा है, वो कुछ बोल रहा है। मत खमीर को जफा मार के आखिरी वक्त का इंतजार करो। कलाम कहता है ये फसा का बर्रा, इसने बनी इसराइल को बचा भी लिया और सिर्फ बचाया नहीं, निकाल भी दिया। कलाम में आपको इसी जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। खरूज की किताब खोलिए और पढ़िए मेरे साथ। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा, पढ़ दो, बड़ा कोहराम, क्योंकि ऐसा एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से, कभी कहता था जाने नहीं दूंगा, आज कह रहा है निकल जाओ। क्यों? इनका फसा कुर्बान हुआ है, इनके लिए किसी ने जान दी है, इनके गुलामी के बंधन तोड़ने के लिए फसा का बर्रा स्लेन किया गया है। रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत 5वां बाब निकाल लीजिए। पहला खत 5वां बाब, और आओ पढ़े।
क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को, ये जो खमीर हो गया ना, ये फिर जो मर्जी पढ़ो तो जो मर्जी फूका मारो, ये खमीर ही रहेगा। पुराना खमीर निकाल कर, इसका एक इलाज है, इनू चोड़े जो बूटियां ना लाओ कि ठीक हो जाएगा, इसको निकाल दो। यीशु मसीह ने मरकस के मुताबिक इंजीली बयान और लूका के मुताबिक इंजीली बयान में कहा, अंदर की चीजें खराब कर दो, निकाल दो। यहां है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा, चुनांचे तुम बेखमीर हो। ये हमारी हैसियत है मसीह में, जिनका फसा कुर्बान हुआ, जिनके लिए कोई मर गया, जिन्होंने अपने घरों की चौखटों पर, जिंदगियों पर यीशु के लहू को ले लिया, उनकी हैसियत यह है कि तुम बेखमीर हो। वजह क्योंकि हमारा भी फसा, बनी इसराइलियों का सिर्फ फसा नहीं कुर्बान हुआ, वो तो अक्स था, मसील था, असल फसा तो मेरा और आपका कुर्बान। बस आओ हम ईद करें। क्या करें? बड़ी जरूरी ईद हम करें, और ये ईद, ये ना ईद फसा की तरफ इशारा है, ना पाकीशा की तरफ। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ईमानदार की जिंदगी। हर रोज ईद, ईद इसके दरअसल पीछे अहद एक गवाही है। ईद मनाते हैं क्यों? फलां दिन ये हुआ था, आओ हम ईद करें, इसलिए कि हमारा भी फसा, और चूंकि हमारा फसा ना सीजनल था, ना सालाना था, ना 5 साला था, ना 7 साला था, वो तो हर रोज ठांपता है, हर रोज बरकत देता है, हर रोज धोता है। इसलिए ईमानदार तेरी जिंदगी हर रोज ईद के समय में होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, इससे फर्क यह पड़ता है कि जिसने बेटा देने से दरेग ना किया, वह बाकी चीजें क्यों कर ना देगा। आओ ईद करें, हर रोज ईद। और किस लिए? ये नवे कपड़े, नवियां जुतियां लेनी, हलवे खान ली नहीं, ये रियलाइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। हमारा भी फसा, वो तो मिस्र की गुलामी में थे, हम शैतान की गुलामी में थे, हम मौत की गुलामी में थे, हमारा फसा आ गया, कुर्बान हुआ। जिस तरह फिरौन उनको ना रोक सका, इब्लीस हमें रोक ना सका, और हम निजात पा गए, छूट गए, बच गए, रिहाई मिल गई, गुनाहों की मुआफी मिल गई, आसमानी शहरी बन गए। ईद करें ना पुराने खमीर से। बहुत दफा हमारा माजी हमारे लिए फंदा बन जाता है, और ये एक है प्रॉब्लम। कोई इसका इकरार करे या हम हैं वैसे भी माजी प्रस्त इस खिते के लोग, इसलिए तो हर कवर ते चंडाला है। ये होता था, ये बड़ा इबादत गुजार था, ये रहना माजी ची, ओदों इंज सी जी। फिर माजी के गुनाह ये आ जाते हैं हमारे आगे। हाँ, इसलिए नहीं कि हम तौबा करें ताकि हम उनमें गर्क हो जाएं, उनमें पड़े रहना, उनको सोच मैं बलास आ गई। माजी दुआ में भी, कलाम पढ़ते भी, इनको रोका नहीं जा सकता। इसका एक ही इलाज है, इसको मसीह के साथ मसलूक कर दो। और कलाम कहता है, और ना बदी और शरारत के खमीर से। ये सारा रौला खमीर का है, पुराने खमीर नहीं, बदी और शरारत के खमीर से ईद नहीं करनी।
बल्कि साफ दिल, यस और नो, हां या, इससे ज्यादा बदी है। साफ दिल, ट्रांसपेरेंट। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से ये बड़ा अच्छा है, ये है, और अंदर हिडन एजेंडा। ऐसा शख्स खुदा को पसंद नहीं आ सकता ते ना वो कहता कुछ बिगाड़ सकता है। साफ दिल, प्योर हार्टेड, क्लीन हार्टेड, और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। बस आओ हम ईद करें आज, आओ ईद करते हैं, आगाज करते हैं ईद का। लेकिन इस ईद के आगाज में आओ खुदा के पाक रूह से कहें। ज़बूर 139 के एंड की आयत में दुआ है, मुझे जांच, मुझे परख। असा हर शय ते पासवर्ड लाया है, रूह पर, जान पर, दिल पर, माजी पर, ख्यालात पर, चॉइसेस पर। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे मोबाइल ना हाथ लाई, ये मैं आप लगाया सारा कुछ। नौजवानों के लिए बड़ा ट्रैप इब्लीस का, बाबे भी फंसे होंगे। आओ पाक रूह को कहें, सर्च कर मेरे दिल के अंदर अगर अदावत, गुस्सा, बुग़्ज़, कीना, सख्त दिली, खमीर, बदी, शरारत, पुराना खमीर, यह लाइफ के किसी हिस्से के अंदर, पर्सनैलिटी के किसी हिस्से में पड़ा है, आज सुबह मुझे फंसा के बर्रे के लहू से धो दे, मुझे पाक कर दे। ताजा गुंदा हुआ आटा मुझे बना दे। और दुआ मांगे। हम पाक की शाह की मेज पर आने वाले हैं।